Chapter 8 verbs. In the following sentences identify the transitive, intransitive और incomplete verbs. हमें इसमें intransitive, transitive और incomplete verbs को मैच करना है. Let's learn verbs. A verb is a word that tells us what a noun or subject is. Okay, verb हमें वो words होते हैं जो हमें बताते हैं कि subject क्या कर रहा है या फिर एक noun क्या कर रहा है. It also tells us about an event, state or an action and its time. Okay, ये हमें events का time, action का time हमें बताता है. Verb takes its form always in conjugation with tense. Verb is important in the sentence because it is the central part of it. Verb हमेशा important रहता है क्योंकि sentence का important part रहता है. It divides a sentence into subject part and predicate part. ये divide करता है sentence को subjective part में और predicate part में. For example, Nita is sleeping in her room. The concert will happen tomorrow. All this is example of verbs. Based on their function, verbs are of two kinds. Two kinds के verbs हैं main verb, principal verb या फिर helping verb. Okay, example नीचे दिए हुए. Okay, next. Auxiliaries or auxiliary verbs are of three. Verbs are of three kinds. Primary auxiliaries, they are of three kinds. Okay, modal auxiliaries and semi-modal marginal auxiliaries. Okay, all this is example of these three things. Okay, next let's learn transitive and intransitive verb. Transitive verb requires an object to make complete sense. Okay, transitive verbs को किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि अपना complete sense बना सके, complete sentence बन सके. For example, the boy raises. Okay, तो ये अधूरा है. तो okay, next में the boy raises his hands. Okay, तो ये complete हो गया transitive verb. Okay, तो यहाँ पे hand object है, right? The sentence make complete sense. The object of the transitive verb may be noun or phrase or a pronoun that is talking about the person or the thing related to the verb. Okay, ट्रांजिटिव वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमें किसके बारे में बताता है? नाउन, फ्रेज या प्रोनाउन के बारे में. ओके, हेमा लव्स आइसक्रीम, दे चार्ज एट द एनिमी, द वाटर रोल डाउन द हिल. ट्रांजिटिव वर्ब्स में वी यूज विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और विद एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, ट्रांजिटिव वर्ब्स को यूज हम कर सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी. Both the sentences above make complete sense in themselves. While him is an indirect object, a penny is a direct object. Penny direct object है और him indirect object है. So transitive verbs can be used with a direct object and an indirect object. For example, Trina gave her a bunch of flowers. The direct object answers the question what, answer a bunch of flowers. The indirect object answers the question whom, answer her. Generally, a direct object refers to a thing. ज़्यादातर किस्सों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है वो थिंग्स से रिलेटेड होता है और जो पर्सन से रिलेटेड होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग. इंट्रांजिटिव वर्ब्स को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, कंप्लीट करने में. फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग. ओके, ऑल दिस एग्जांपल ऑफ दिस इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, नेक्स्ट. This time of here we have to do answer whether it is transitive or intransitive verbs. Next, let's learn complements. Some verbs like be, seem, appear tell us not only about an action but also about a state. Okay, be, seem, appear हमें ना ही एक्शन के बारे में बताते हैं बल्कि उसके और उसके डीपली हमें बताते हैं, उसके बारे में डीपली बताते हैं. दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब्स. ओके, तो ऐसे वर्ब्स को हम इनकम्प्लीट वर्ब्स बोलेंगे. एंड द वर्ड नीडेड टू गिव and the word needed to give them a complete meaning is called a complement. Okay, complete meaning जो verbs देते हैं उसे बोलते हैं हम complement. Read the following sentences. Okay, this is example of verbs. Okay, now read the following sentences. These sentences make complete sense. Complete sense के sentences के example दिए हुए हैं और incomplete sense के sentence के भी example already दिए हुए हैं. Okay, next, complements are of two kinds: subject complement and object complement. Okay, दो तरह के complements होते हैं, एक तो subject और एक object. when the additional word tells us something about the subject. ओके, एक एडिशनल वर्ड हम उसके अंदर डालते हैं. ओके, तो वो हमें जो बताता है सब्जेक्ट के बारे में उसे बोलते हैं हम इट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर प्रताप इज़ हाईली स्किल्ड. ओके, तो सब्जेक्ट डॉक्टर प्रताप है और हाईली स्किल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. हमें एडिशनल बता रहा है ना, ये सेंटेंस के बारे में हमें एडिशनल बता रहा है. डॉक्टर प्रताप इज़. ओके, और कंप्लीट कर रहा है सब्जेक्ट के साथ. व्हेन द एडिशनल वर्ड टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा होता है आगे का वर्ड, तो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. व्हेन द एडिशनल वर्ड टेल्स अस समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, और अगर हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में सब्जेक्ट बता रहा है तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. वी फाउंड द रिपोर्ट्स and the addition word tells us something about the object is called the object complement. Okay, addition word हमें object के बारे में बता रहा है तो उसको बोलेंगे object complement. For example, we found the reports helpful. Okay, the reports जो object है यहाँ पे helpful object complement है. Next, practice time 2. In the sentences given below, the underlined words or complements identify and write whether they are subjective or objective.
हमें यहाँ पे बताना है कि ये सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है. ओके, नेक्स्ट लेट्स नो इन्फिनेटिव. द रूट और बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव. ओके, वर्ब का जो बेसिक और रूट होता है, ओके, तो उसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव. इट इज़ जनरली अकम्पनीड बाई टू. फॉर एग्जाम्पल, दे सेड टू ईट, ही बिगन टू रन, आई लव टू ट्रैवल, इट इज़ टाइम टू थिंक. प्रैक्टिस टाइम 3 फिलअप्स करना. ओके, यहाँ पे हमें इन्फिनेटिव्स की मदद से. नेक्स्ट, लेट्स लर्न फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब इज जनरली द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होता है उसे बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब. एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अ नाउन एंड ऑल्सो द टेंस. नाउन के अकॉर्डिंगली ये, नाउन के नंबर के अकॉर्डिंगली ये चेंज होता है. फिर फॉलोइंग सेंटेंसेस: दे स्टडी एट होम, ही स्टडीज एट होम, ही स्टडीड ऑनलाइन. ये द वर्ब स्टडी चेंजेस in the subject they and he. The verb also changes with the tense in the third sentence. Non-finite verbs do not tell us about the action done by the subject in a sentence. Non-finite verbs हमें action के बारे में नहीं बताते. ओके, दे मे बी यूज एज अ नाउन एंड एडवर्ब और एन एडजेक्टिव. वो यूज़ होते हैं नाउन में, एडवर्ब में और एडजेक्टिव में. एंड डू नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट. वो सब्जेक्ट की तरह चेंज नहीं होते. Read the following sentences. She loves swimming in the lake. Here, the non-finite verb swimming is a noun. The action done by the subject she loves what? Answer swimming. So swimming in this sentence is a thing she loves, therefore it is a noun. A teacher tried to help the child. Here the subject teacher is the action tried. The teacher tried what? Answer to help. In this sentence, to help is telling us something more about the verb tried, therefore it is an adverb. A barking dog walks up. Here barking is an adjective as it is telling us about the noun dog. In most cases, an adjective answers the question which or what after the noun. All this is the example of finite and non-finite verbs. Practice time 4. Next, let's learn auxiliary and modal verbs. When the verbs to be, have, to do, and use with the main verbs to make tenses, passive forms, questions and negatives, they are called auxiliary verbs. Verbs जैसे कि to be, to have, to do, ओके, डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ होते हैं. तो इसको यूज़ होते हैं ये मेन वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं. ओके, जैसे अगर हमें टेंसेस बनाना है, पैसिव फॉर्म्स बनाना है, क्वेश्चंस या नेगेटिव्स बनाना है, तो दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. व्हेन द वर्ब्स टू बी, टू हैव, टू डू आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स. ये मेन वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं ताकि उसका टेंस बना सके, हम पैसिव फॉर्म्स बना सके. तो ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स. द टर्म ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग, दस दे आर कॉल्ड also called the helping verbs. Auxiliary का दूसरे वर्ड्स में हम helping verbs भी बोल सकते हैं. Different forms of auxiliary verbs. Auxiliary verbs have 3 forms: to be, to have and to do. All this is the example of auxiliary verbs. Next, modal verbs are included in the auxiliary to show ability. Modal verbs are included in the auxiliary to show ability. Modal verbs वो होते हैं जो auxiliary के साथ होते हैं, जो हमें बताते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन. दे आर यूज विद द मेन वर्ब विच इज़ इन द प्रेजेंट टेंस. ओके, ये मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं कौन? मॉडल वर्ब्स, जो कि प्रेजेंट टेंस में होते हैं. नेक्स्ट, different uses of modal verbs. Modal verbs are can, will, shall, ought to, must, need and may. Read the following sentences. I can have tea without sugar. I will take a walk after dinner. Okay, all this is the example of modal verbs. Can, it is used to request something, to request and grant permission, to state ability. Okay, can का use हम कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में. Will and shall, it is used to state or predicate. एक मिनट. ओके, द कैन इज रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट समथिंग. ओके, किसी को हमें रिक्वेस्ट करना हो किसी चीज़ के लिए तो हम कैन का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी विद द डिशेस, क्या तुम मुझे डिशेस के साथ मदद करोगे. कैन यू शो मी हाउ टू डू दिस, क्या तुम मेरे साथ, कैन यू शो मी हाउ टू डू दिस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कैसे करेंगे. ओके, ऑल दिस इज़ द रिक्वेस्ट. या फिर परमिशन लेनी हो किसी चीज़ की, या हमें एबिलिटी बतानी हो. तो फिर आई कैन ईट 5 बर्गर्स फॉर लंच, मैं 5 बर्गर्स लंच में खा सकता हूँ. ओके, तो ये एबिलिटी बता रहा है कि मैं कितने खा सकता हूँ. शी कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन.
वो लड़की हिंदी, इंग्लिश या फ्रेंच या जर्मन बोल सकती है. ओके, दिस इज एबिलिटी, शोइंग एबिलिटी. विल एंड शैल, इट इज यूज्ड टू स्टेट और प्रेडिकेट दैट एन इवेंट और एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. विल और शैल हमें बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सी एक्शन होने वाली है, कौन सा इवेंट होने वाला है. विच स्टॉप्स रेनिंग वी विल बी एबल टू प्ले इन द पार्क. ओके, अगर रेन रुक गई, ओके, मे माइट, इट इज़ यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट, इन ऑफ़र और अ सजेशन. मे और माइट का यूज़ हम जब करेंगे जब हमें किसी को किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी हो, या किसी को ऑफ़र देनी हो, या फिर सजेशन देना हो या लेना हो, तो हम मे या माइट का यूज़ करेंगे. इट इज़ यूज ऑल्सो यूज टू गिव और डिनाई परमिशन. ये देने और ना देने की परमिशन में भी यूज़ होते हैं. मे आई सी दैट ड्राइंग वंस मोर, क्या मैं वो ड्राइंग एक और बार देख सकती हूँ. तो यहाँ पे मे का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट हो रही है. इफ़ आई गेट अप अर्ली आई माइट बी एबल टू अकम्पनी यू. यहाँ पे ये सजेशन दे रहे हैं ना कि अगर मैं जल्दी उठ गया तो मैं आपके साथ रहूँगा, शायद मैं आपके साथ रहूँगा. माइट. All this is the example of may and might. Ought to, it is used to talk about duty, a necessity or a moral obligation. किसी भी, ये ought to कब यूज़ होता है, जब हमें किसी के बारे में, किसी ड्यूटी के बारे में बात करनी हो, किसी कर्तव्य के बारे में, किसी नेसेसिटी, किसी ज़रूरत के बारे में बात करनी हो, तो हम ought का यूज़ करेंगे. इट इज़ नॉट एज फोर्सफुल एज मस्ट बट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड. ओके, ये मस्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. यू ought टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स हु ब्रॉट यू अप विथ केयर. तुम्हें अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए जिन्होंने तुम्हें इतनी पाल पोस के इतनी संभाल के आपको बड़ा किया. ओके, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ought to. नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 5. हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ब को अंडरलाइन करके फिलअप करना है. बी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल. ओके, मॉडल वर्ब्स को हमें यूज़ करना है. And I think the chapter is finished. All this is the practice time and exercises. Okay, so you have to write and complete it.